All right. Is there any message? Yes, someone raised. Yes, as if you raised the hand. Actually, so far there were the topics that I we have not done. They were the plant nutrition and plant transport. So we have skipped those topics from the plants, and we have started the human physiology topics. That is human nutrition, and after that we are doing the gas exchange, and we would be covering first all the human physiology topic. That is gas exchange. After that, respiration, then transport in animals, then coordination and control. This would be covering human physiology topics, right? And then we would be moving some other topics because these topics are up to an extent interrelated in respect to human physiology. So basically what I do whenever I teach student, we go topics like whatever they have, whatever they are in sequence in your syllabus. But this time I have skipped the plant topics. We would be doing it later. And first of all, we are doing the human physiology topics, right? Coordination and control we won't be doing. Yes, we will be doing it after but we will be doing first animal first. We After that we will be doing respiration, then animal transport, and then coordination and control. We can do it, but I suggest that first of all go through with these topics because coordination and control, after that, because coordination and control deals with the hormones and everything, which I believe that you people should do these things first, so that it will be interrelating the topics that we are doing, right them with the coordination and control. As you know, the CI syllabus, the scheme of work that is suggest, they also suggest to do them in the way they have been listed in the syllabus. They Whenever we say that gas exchange, this is actually the topic 9, right? And whenever we say gas exchange, sometimes the students say, the people say that respiration, right? Respiration in biological term, it is a metabolic process. It's a chemical process that occurs in every living organism. And whenever we talk about gas exchange, so gas exchange and respiration a bit different in terms and a bit different in meanings, and both are different processes. Because for respiration, the raw material that is needed is oxygen, and carbon dioxide is produced as a product. So these two gases are being exchanged from the cell. Right now, from the cell out into the environment, how the gases are exchanged, this is done by a breathing system. So actually, gas exchange in human covers the whole your breathing system, right? Breathing system include all the structures which are found in the breathing system. This is sometimes also called as respiratory system, right? Or the gas exchange system, right? But they include, but whenever we say respiration, whenever we breathe, whenever we are breathing air, this is not respiration. Respiration is something that is a chemical reaction, a biochemical reaction that occurs in each and every cell of yours, right? So gas exchange is taking in oxygen and excreting out and exhaling out carbon dioxide. And how it is done with the help of the structures that are present, this is something that we are going to study in this topic, right? So before we move on towards the breathing system or the structures that are involved in breathing of air, right, and how the mechanism of breathing happens in a human being, we should know what are the characteristics, what are the feature of a gas exchange surface, right? So basically you should know that what is a gas exchange surface. The surface where gas exchange occur is in an organism, is it is very different, and in every different organism it is all evolved in a different way, right?
This is something that this is a place where the gases that an organism require move inside the organism, and the gases which are not really needed by that organisms are excreted out or move out or exhale out, and they depend upon the size of that organism and the place where they live. For example, if we talk about fish, right, the fish have gills, right, through which they basically absorb oxygen and release carbon dioxide in the water. When we talk about human being, we have lungs, right? All the mammals have lungs, all the reptiles, birds, they have lungs, amphibians have lungs as well. So our basically gas exchange surface is actually the lungs. The lungs is the organ that is involved in the taking in of oxygen and giving out carbon dioxide. Now, there are certain features which are common in all the living organisms for the gas exchange, and basically, this allows them to absorb maximum of the gases that they require, and they help them to exhale out the gases which are not needed, which are perhaps toxic for them, into the environment, right? So this is what you must know, that the feature of those gas exchange surfaces. Now you will have to remember those features on your fingertips whenever you will be talking about those features. And these features are basically common for every living organism, either it is a single unicellular organism like bacteria, or either it is for any plant, or even it is the same for a human being as well, right? Now, what are they included? Let me increase the size of the font, right? So what are the features that are in common? Number one is the large surface area, right? Number one is the large surface area that allows the faster diffusion of gases across the surface, right? Now, as we have already learned in our topic 3, that was the movement into out of cell, that there are certain factors that basically facilitate the quick diffusion rate, or the high diffusion rate of any substance, and one of them was large surface area. As you know that gases, namaz break, azan break, right? तो ये हमारी परसेंटेजेस ऑफ गैसेस इन इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर हैं, इन विच ये याद रखना है दैट नाइट्रोजन इज 78 to 79%, और वो एब्जॉर्ब नहीं होती है, ठीक है। ऑक्सीजन 21% होती है इंस्पायर्ड एयर में, बट व्हेन इट इज़ एब्जॉर्ब, तो जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो वो सिर्फ 16% रह जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.04% है हमारी उस एयर में जिसमें हम सांस लेते हैं, जब हम वेन एवर वी एक्सेल आउट, तो वो रह जाती है 4%, वो बढ़ जाती है, 100 टाइम्स बढ़ जाती है, ठीक है। और वाटर वेपर्स हमेशा सेचुरेटेड होते हैं, क्योंकि हमारी जो हमारी एक्सेल एयर जो हमारी एक्सपायर्ड एयर होती है, जो हम सांस बाहर निकालते हैं, उसमें वाटर वेपर्स हमेशा ज़्यादा होते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट क्वेश्चन, जिसमें आप ये देख सकें कि हाउ दिस कॉम्पोजिशन ऑफ एयर हैज़ बिन आस्क्ड इन द एग्ज़ाम। अच्छा देखिए, इसको मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि एक क्वेश्चन जो था, ये ये था P1 का क्वेश्चन विच आई एम अबाउट टू पेस्ट। इसके अंदर यू हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक है। देखिए पूछा किस तरीके से, सिंपल सा अगर आपने याद कर लिया तो आपको याद, अगर ये चीज़ है, आपको ये फैक्ट याद है, ठीक है, तो उसको पूछा कैसे जा सकता है, ऐसे। द पाई चार्ट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस इन सैम्पल्स ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। अब ये गैसेस का दिया हुआ है, इंस्पायर्ड एयर में 1 2 3 करके दिया हुआ है, एक्सपायर्ड एयर में। अब आपने इनको देख कर के बताना है कि विच इज विच गैस। तो सेगमेंट 1 क्या होगा,
What is going to be the segment 1? Segment नाइट्रोजन, वेरी गुड, क्योंकि नाइट्रोजन 78 to 79% है, ठीक है। व्हाट इज 2? नहीं, दोनों में ऑक्सीजन। एंड सी, यहाँ पे इंस्पायर्ड एयर में 3 बहुत थोड़ा सा था और यहाँ पे बढ़ गया, तो व्हाट इज दिस? एग्जैक्टली, वेरी गुड, इट्स कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा भी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। अच्छा, ये तो P1 का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ P2 का एक क्वेश्चन। इट्स नॉट हियर। इसके अंदर, वेट, there is a question that is I'm not able to find it. अच्छा, ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँगी बिकॉज़ राइट नाउ आई एम अनएबल टू फाइंड इट। मुझे याद था कि 2021 के अंदर ये है, बट लेकिन आई एम, वेट, आई थिंक ये मुझे मिल जाएगा, ठीक है। बिकॉज़ आई रियली वांट टू, जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं तो हम साथ-साथ में इसको डिस्कस कर लें, ताकि आपको पता चल सके कि ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा भी जा सकता है। जस्ट गिव मी अ मिनट टू सी। ओके, मैं आपको आपके साथ इसको शेयर करती हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो आपकी आती है इसमें, दैट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये भी हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट होता है परसेंटेजेस ऑफ गैसेस, हमने डिस्कस कर ली। और डिफरेंसेस हमने इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर के भी डिस्कस कर लिए कि इन दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस क्या हैं। अब हमारे पास आ जाता है कि जो हमारा ब्रीदिंग सिस्टम है, उस ब्रीदिंग सिस्टम के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं उसके अंदर, ब्रीदिंग सिस्टम में क्या क्या आता है, आपको उनको आइडेंटिफाई करना भी आना चाहिए। सम टाइम दे मे आस्क यू फॉर लेबल, ठीक है, वो लेबलिंग भी आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। सो आई एम हियर पेस्टिंग द, ये हमारा ब्रीदिंग सिस्टम है, ठीक है। इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं। अगर आप इसके अंदर देखें तो यहाँ पर आपको, अच्छा, वी कैन ब्रीथ विद आर नोज एज वेल एंड विद आर माउथ एज वेल, ठीक है। प्राइमरीली हम ब्रीथ करते हैं अपनी नोज से, ठीक है। और अगर हमारा कभी कभी जब हम अपनी नोज़ से ब्रीथ नहीं कर पाते, ठीक है, जब हमारे ये नेज़ल कैविटी जो है तो थोड़ी सी ब्लॉक हुई हुई होती है, तो हम अपने माउथ से ब्रीथ करते हैं, क्योंकि नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों हमारी ट्रैकिया में ओपन हो रही होती हैं, ठीक है। नेज़ल कैविटी वो है जो नाक से जो हमारे एक जा रही है, ठीक है। एक पूरी एक हमारा ट्रैक जा रहा है, जो ट्रैकिया के अंदर ओपन हो रहा है, एक पाइप आप कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से माउथ से भी जब हम सांस लेते हैं तो ये ट्रैकिया में खुलता है। अच्छा, ट्रैकिया इज़ बेसिकली एक वर्टिकल कॉलम है जो कि हमारे लंग्स में दोनों तरफ, दो तरफ डिवाइड हो रहा होता है। और ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं, बट बायोलॉजिकल टर्म्स में वी शुड राइट इट एज ट्रैकिया, ठीक है। अगर आप ट्रैकिया के अंदर गौर से देखें, सो यू कैन सी दैट इट हैज़ सर्कुलर दीज स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं ना, दीज रिंग्स, सर्कुलर रिंग्स हैं, ये कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं। ट्रैकिया खुद जो है वो एक बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर होता है। अब एक सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर जो होता है वो कोलेप्स कर सकता है,
उसमें वैक्यूम भी क्रिएट हो सकता है, और वो कोलैप्स ना करे और वो ब्लॉक ना हो, तो इट हैज़ दीज सर्कुलर रिंग्स। ये जो सर्कुलर रिंग्स है, कार्टिलेज के रिंग्स हैं, ये हेल्प आउट करते हैं कि ट्रैकिया हमारा कोलैप्स ना करे और हर वक्त खुला रहे। ठीक है, ताकि अगर आप सोचने वाली बात है कि अगर एक पाइप है और वो बहुत नरम से मटेरियल का है, ठीक है, बहुत नरम से, बहुत सॉफ्ट से रबर का है, तो वो एकदम से वैक्यूम उसमें क्रिएट हो सकता है, वहाँ वो ब्लॉक हो सकता है, वो आपस में उसकी वॉल्स जो है वो स्टिक हो सकती हैं। लेकिन जब अगर उसके बाहर इस किस्म का स्ट्रक्चर होगा कार्टिलेज का, तो दिस विल बी हेल्पिंग इट कि ये कोलैप्स भी ना हो, ये खुला रहे और एयर बहुत आराम से अंदर बाहर जाती रहे। कभी कभी 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि कार्टिलेज का आपको फंक्शन, कार्टिलेज रिंग्स का आपको फंक्शन पता हो। सो दिस इज द ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं। यहाँ पे हमारे लैरिंग्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये ट्रैकिया जो डिवाइड हो रहा होता है दो लंग्स में, हमारे पास जो हमारा ऑर्गन है लंग्स, वो हमारे पास 2 लंग्स हैं, राइट। और ये लंग्स के अंदर ये जो ट्रैकिया जो डिवाइड हो रहा होता है, दीज आर, वन इज कॉल्ड ब्रोंकस, और अगर दो हैं तो ब्रोंकाई कहलाते हैं। ठीक है। ये जो चीज़ है, दिस इज द ब्रोंकस, राइट। ये ब्रोंकस है, और ये दोनों मिलके ब्रोंकाई बनाते हैं। ब्रोंकस फर्दर मजीद ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, विच आर कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। ठीक है। इसको अगर आप ये देखें तो यहाँ पे फर्दर मजीद ब्रांचेस में डिवाइड हुआ, विच आर कॉल्ड ब्रोंकियोल्स। ठीक है। जैसे एक दरख्त होता है, दरख्त की एक स्टेम है, नीचे का ट्री ट्रंक है, तो ट्री ट्रंक हमारा क्या है, ये एक उल्टा दरख्त है। अगर आप इसको यूं कर लें ना, ऐसे अगर आप इस पिक्चर को रोटेट कर दें आप, तो आप देखेंगे ये आपकी ट्री ट्रंक हो गया, और ट्री ट्रंक की जैसे मेन ब्रांचेस होती हैं, ये इसकी ब्रांचेस हो गई, और ये फर्दर इसकी ब्रांचेस हो गई, इसकी ट्विग्स हो गए। ठीक है। तो जो दो मेन ब्रांचेस हैं, दे आर कॉल्ड ब्रोंकस और ब्रोंकाई। वन इज ब्रोंकस एंड प्लूरल इज ब्रोंकाई। और वो फर्दर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो रहा है। इन ब्रोंक्यूल्स के एंड में अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। दीज आर द एयर सेक्स, AIR, दीज आर द एयर सेक्स। ये हमारे एयर सेक्स होते हैं। ठीक है। जिनको हम एल्वलाई कह रहे होते हैं, और ये वो एक्सचेंज सर्फेसेस होती हैं जहाँ से ऑक्सीजन अंदर बाहर जा रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर जा रही होती है। ठीक है। और ये कवर्ड होते हैं, आप देखिए यहाँ पे ब्लू और रेड आपको नजर आ रहा है, ये कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं। दे आर सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ताकि ब्लड तेजी के साथ जो ऑक्सीजन आ रही है ब्लड के अंदर जाए, और ब्लड उसको तेजी से लेकर आगे बढ़ जाए। ठीक है। तो वेंटिलेशन के लिए दे हैव अ वेरी गुड ब्लड सप्लाई। और ये जो इतनी सारी आपकी एल्वुलाई की जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, सर्कुलर से स्ट्रक्चर्स हैं, एयर सैक्स हैं, they are basically increasing the surface area, they are the gas exchange surface। ठीक है। ये हमारी गैस एक्सचेंज सर्फेस है। अगर इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको ये जो हमारी कैविटी होती है ना, जिस जगह पर ये हमारे लंग्स हैं, दिस इज़ कॉल्ड द प्लूरल कैविटी, और इसके अंदर एक फ्लूइड से फिल्ड होती है, ताकि हमारे लंग्स जो हैं वो एक्सटर्नल जर्क से महफूज रहें। ठीक है। फ्लूइड हमेशा जो होता है ना, किसी भी चीज़ के बाहर अगर एक फ्लूइड रख दें तो वो उसको एक्सटर्नल जर्क से बचाता है। ठीक है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने हमारे इन सॉफ्ट ऑर्गन्स को जो प्रोटेक्ट किया है, वो किया है रिब्स के थ्रू। तो वी हैव अ रिब केज बेसिकली दैट प्रोटेक्ट्स आवर लंग्स एंड हार्ट, राइट। तो ये आपको जो वाइट वाइट नज़र आ रही हैं, ये आपकी रिब्स नज़र आ रही हैं। ठीक है। इन रिब्स के दरमियान में कुछ मसल्स होते हैं, विच आर कॉल्ड इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है। रिब्स के मिड में इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं। इसके अलावा हमारे इस थॉरेक्स कैविटी, ये जो हमारी चेस्ट कैविटी है ना, इसको थॉरेक्स कैविटी भी कहते हैं। यहाँ पे हमारा देयर इज़ अ शीट ऑफ मसल्स, जो कि आप एक डोम शेप का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। देयर इज़ अ शीट ऑफ मसल विच इज़ कॉल्ड डायाफ्राम। दिस इज़ द डायाफ्राम। ये जो डायाफ्राम है, दिस इज़ अ शीट ऑफ मसल विच कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो देयर आर सम एक्टिविटीज़। प्लूरल कैविटी का फंक्शन बेसिकली, जो ये कैविटी है ना, इस कैविटी के अंदर हमारे लंग्स और हार्ट होता है। ठीक है। ये हमारी जो प्लूरल कैविटी है, ये जो जगह है, जो रिब्स के दरमियान की जगह है, पीछे की रिब्स और आगे की रिब्स के अंदर में के दरमियान में जगह कहलाती है प्लूरल कैविटी। इसके अंदर फ्लूइड होता है, और ये फ्लूइड जो होता है वो हमारे लंग्स को प्रिवेंट कर रहा होता है हमारे एक्सटर्नल जर्क से। ठीक है। ये डायाफ्राम है। ठीक है। आपने जिन स्ट्रक्चर्स को याद रखना है और जो कि लेबलिंग के लिए आ सकते हैं,
वो एक है ये ट्रैकिया, दिस ट्रैकिया, द ब्रोंकियोल्स, इसके अलावा ये एल्वलाई, ठीक है, ब्रोंकाई, ये डायाफ्राम, और ये रिब्स, और रिब्स के दरमियान में जो आपको रेड रेड कलर का नज़र आ रहा है, दिस रेड थिंग, इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, मैं आपको इसकी फर्दर मज़ीद प्लूरल कैविटी बेसिकली बेटे, प्लूरल कैविटी जो मैंने आपको बताया, जो रिब्स होती है ना, रिब्स आपकी आगे की रिब्स, फ्रंट रिब्स और पीछे के रिब्स मिलके कैविटी बना रही होती है, एक एक जगह बना रही होती है, वो प्लूरल कैविटी कहलाती है। आपकी रिब्स के अंदर की जगह प्लूरल कैविटी कहलाती है। ठीक है, ये उसका फंक्शन है। और ये रिब्स होती किस लिए? ताकि आपके लंग्स और हार्ट जो है ना वो महफूज रहें। ठीक है, मैं आपको फर्दर लंग्स की और क्लोज एक आपको डायग्राम दिखाती हूँ जिसके अंदर आप आइडेंटिफाई कर सकें। राइट, ठीक है, अगर आप इसमें देखें तो ये हमारे लैरिंग्स हैं, ये हमारा ट्रैकिया के ऊपर का जो एक लिड है लैरिंग्स है। ठीक है, देन ट्रैकिया जिसको हम विंड पाइप कह रहे हैं, देन ये ब्रोंकाई है, ये ब्रोंकियोल्स है। ठीक है, अब ये देखिए, मैं जो आपको इंटरकॉस्टल मसल्स कह रही थी वो मसल्स हैं रिब्स के दरमियान के। अच्छा, रिब्स बोन्स हैं, बोन्स खुद से मूव कर नहीं सकती, तो बोन्स को मूव करने के लिए देयर आर ऑलवेज सर्टेन मसल्स। तो रिब्स की मूवमेंट के लिए जब हम ब्रीदिंग करते हैं ना, तो हमारी रिब्स ऊपर नीचे हो रही होती हैं। ठीक है, अगर आप सीधे लेट जाएं और खुद ना लेटें, आप किसी को आप इफ़ यू ले डाउन और आप देखें कोई, इफ़ समवन इज़ लेइंग डाउन, तो आप नोटिस करेंगे कि जब वो सांस ले रहा होगा तो उसकी रिब्स ऊपर हो रही होंगी, और जब उसके वो एक्सेल आउट कर रहा होगा, सांस बाहर निकाल रहा होगा, तो उसकी रिब्स अंदर जा रही होंगी। ठीक है, तो रिब्स खुद से मूव नहीं कर सकती। रिब्स को मूव करवाने के लिए मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। तो ये रिब्स के दरमियान में ये जो मसल्स हैं, दीज आर द इंटरकॉस्टल मसल्स। जो आगे की तरफ के मसल्स हैं, जो फ्रंट साइड के मसल्स हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। और जो अंदर के मसल्स हैं, दीज आर कॉल्ड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। दीज मसल्स हेल्प टू मूव द रिब्स, बेसिकली इनकी रिब्स को ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये हमारी रिब्स हैं, ये कार्टिलेज के रिंग्स हैं, और यू कैन सी दैट बाकी ये हमारा डायाफ्राम है। डायाफ्राम बेसिकली इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हमारी थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ता है। दिस इज द स्टर्नम। स्टर्नम बेसिकली हमारी आगे जो रिब्स जिस हड्डी के साथ मिल रहे होते हैं, ये वो है। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर लंग्स। राइट, अच्छा, एक चीज़ और हमने याद रखनी है कि ये जो हमारे लंग्स हैं, दिस इज द, अगर हमें देखा जाए तो हम कहेंगे ये लेफ्ट लंग है, लेकिन एक्चुअली ये लंग्स जो हैं, इसको आपने, ये जो राइट साइड पे आपके लंग्स बने हुए, दिस इज द लेफ्ट लंग। ठीक है, और ये जो आपके लेफ्ट साइड पे, दिस इज द राइट लंग। व्हाई इज दैट सो? क्योंकि ये बिल्कुल मिरर इमेज होता है। जैसे कोई शख्स आपके सामने खड़ा हुआ है, तो उसका राइट हैंड साइड आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। ठीक है, ये आपके अपने लंग्स नहीं है। राइट, ये उस शख्स के लंग्स हैं जो आपके सामने खड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली उसकी राइट हैंड साइड आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होगी। ठीक है, तो आपने उसको इस तरीके से करना है। इसकी फंक्शनिंग कैसे है, हाउ डू वी ब्रीथ, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो सो फार इन दिस लेक्चर वी हैव कवर्ड gas exchange surfaces, features, we have covered percentages of gases, we have also covered inspired and expired air differences, and we have also identified on diagrams larynx, trachea, lungs, bronchi, bronchioles, alveoli, and associated capillaries. Now we have to discuss the characteristics of alveoli, which are the gas exchange surface in human lungs. Inshallah Ta'ala, we will be continuing this part and the rest of the parts tomorrow in the lecture. ठीक है, till then take care. Allah Hafiz.